Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to the 40th fortnightly session on Taste the Tradition, a workshop on Indian foods for holistic well-being. This session is exclusively designed for students from grades 5 to 12. We are delighted to have you here. This workshop, hosted by CAMP in collaboration with CSIR NISPERS, Swastik, is a valuable opportunity for all of us. I am Aniket Arora, the convener of CAMP, and I will be your moderator for today's session. Our distinguished panel includes Dr. Charulata, Principal Scientist, CSIR NISPER, Mr. Ashish Kumar Mittal, Project Director at CAMP, Ms. Arika Mathur, Product Head at CAMP, and of course, our exceptional students who have joined us today. We extend a warm and heartfelt welcome to each one of you. Thank you for being a part of this enlightening experience. Knowledge and Awareness Mapping Platform, as you know, is an initiative and knowledge alliance of CSIR NISPER, National Institute of Science Communication and Policy Research, Ministry of Science and Technology, with industrial partner NCPL, NISA Communication Private Limited. Our speaker for this workshop, Dr. Charulata, Principal Scientist and Head of the Inclusive Health and Traditional Knowledge Studies Division, CSIR NISPER. She's the editor of the Indian Journal of Traditional Knowledge and Indian Science Abstract. Currently, she is also leading the national initiative Swastik on communicating India's scientifically validated traditional knowledge to society. She is a recipient of many prestigious top awards for young scientists in India. She is a recipient of many prestigious top awards for young scientists in India, including the Young Scientist Award by INSA and NASI in 2012, and is an associate of the Indian National Academy of Sciences. She has also been awarded various prestigious awards and has authored more than 60 original research and review articles and book chapters in various peer-reviewed high-impact SCI journals. I would also like to mention that today, this is our 40th online knowledge sharing session and the third session with Dr. Charulata herself. I'd like to express a heartfelt thanks to the entire Swastik team who have conducted more than half a dozen sessions for our lovely student. So thank you so much, ma'am. Am I visible? You're on mute. Yes. And yes, I'm audible too, yeah. Yes, So, you're audible. yeah, thank you, Aniket, for such a lovely introduction. So it's always nice to connect with students. Yeah, so it was quite a hectic day today. And I just tried to ठीक है बच्चों के साथ interact करना है. So I am here. Yes. Your video is not on, I think. I mean, my video is on. Okay, let me just, okay, perfectly fine. Yes. Yeah, the video is on, yeah. So, okay. So thank you so much, ma'am, for being here. So today in this session, we will be discovering the rich world of Indian foods and their contribution to holistic well-being. So how many of you are ready to revolutionize your well-being and embrace a healthier, more sustainable lifestyle with this exclusive knowledge sharing session? Everyone, yes. Yes, everyone. Perfect. And those, and I definitely feel that those who are like those who have joined this session are definitely cautious about their health, or they're food enthusiasts and they want to know more about like Indian food. So definitely. Yeah. So shall I share my? Yeah, it's good. It's great to see so much young minds today with us. Yeah. So I'll try my best. Indian food is like quite vast. Like it's as vast as Indian cultural heritage. Though some aspects I'll try to cover as much as I can. Yeah. So shall I share my screen? Yeah. Yes, you can. I just have to make a few announcements. I'll just make that. Yeah, sure. Please do that. Yeah. Please do that. So I'd just like to say that Indian foods are known for their diverse flavors, aromatic spices, and nutritional richness. They are not only delicious, but also contribute to holistic well-being in various ways,
And like you all know, in this workshop, Dr. Charulata will be helping us understand it all in detail. But before we proceed with today's session, I would like to announce that this week, on the 14th of November, CAMP is organizing its 18th scientific excursion at the Central Electronics Engineering Research Institute, Siri, Pilani, Rajasthan, where more than 100 NASTA students will be visiting and learning from various experts at the CSI lab. Such experiential learning helps in nurturing profound interest in science and fostering an understanding of various developments in India among students. With these opportunities, the students get to interact with esteemed scientists and enable themselves to explore, discover, and actively engage with diverse scientific fields in real-world settings. If you would also like to participate in such excursions and get a chance to explore, discover, and engage with various scientific disciplines in real-world setting at various eminent CSI laboratories or research organizations in India, then check out the link below to learn more about how you can participate. For any support, you can even get in touch with our team through the given helpline number in the chat below. So, coming back to today's session, without any delay, I would like to invite Dr. Charulata to enlighten our students with her exclusive workshop on Taste the Tradition, a workshop on Indian foods for holistic well-being. Thank you, Aniket. So, yeah, and I'll start the session and just share. So I hope my PPT is visible. Yes, ma'am, it's visible. Yeah. Okay. So, yes. So today, for this workshop, it's a very interesting topic that I'm going to talk about. It is on Taste the Tradition, a workshop on Indian foods for holistic well-being. तो क्या है कि खाना, and my talk will be in English and Hindi. Okay, so I'll be switching on and off to basically interact better with the students. So what happens is खाना हम सब खाते हैं. खाना is like a necessity of life. You cannot skip meals. तो खाना जरूरी है, बट क्या हम हेल्दी खाते हैं, कितना हेल्दी खाते हैं, या हमारा फूड प्रेफरेंसेस क्या है. सो दैट एक्चुअली डिटरमिन्स आवर ओवरऑल होलिस्टिक वेलबींग एक्चुअली. जैसे क्या है कि इंडियन फूड में यूजली जो नॉर्मल, अगर हमारे घर पे हम है तो नॉर्मल आप नॉर्थ इंडिया में देखें या साउथ इंडिया में देखें, सो इट विल बी लाइक दाल चावल सब्जी और रोटी सब्जी, और मे बी अगर साउथ इंडियंस हैं तो थोड़ा इडली और डोसा और समथिंग लाइक दैट, बट मोस्टली राइस एंड व्हीट विल बी स्टेपल फूड. एंड प्रॉपरली जो हमारा अपना कुछ मेथड्स होता है, फर्मेंटेशन, बॉइलिंग और रोस्टिंग, मतलब उस तरीके से बनाते हैं. बट जो आजकल का फूड प्रेफरेंस है यूजुअली बच्चों का, जो हम कहते हैं रेडी टू ईट भी है, ये आजकल मदर्स का भी हो गया है कि अपना टिफिन में यूजुअली आपको मैकेन्स के फ्रेंच फ्राइज मिल जाएंगे या कुछ वैसा मिल जाता है, सो रेडी टू ईट हो जाता है. या फिर आप प्रोसेस्ड फूड बहुत जस्ट क्योंकि एवरीथिंग इज ऑन अ जस्ट अ क्लिक अवे, आप फोन पर कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं, जोमेटो है, स्विगी है, सो यू आर ऑर्डरिंग पिज्जाज एंड बर्गर्स. तो ये काफी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, काफी ज्यादा अमाउंट में इसमें सॉल्ट होता है. तो आप देखोगे कि आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा ओबेसिटी भी बढ़ रही है. आपका जैसे बच्चे छोटे एज में काफी एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, स्ट्रेस नहीं, जैसे ज्यादा हैंडल नहीं कर पाते हैं. तो ये सारी चीजें हैं. तो इसलिए हम कहते हैं कि जैसे जो हम खाते हैं वो हम बनते हैं. तो आज की जो सेशन में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन फूड, कि इंडियन फूड क्या है और क्यों हमको लेना चाहिए, और क्या रूल्स हैं जो उसको इंडियन फूड्स को गवर्न करते हैं, मतलब हाउ इंडियन फूड इज एक्चुअली हेल्पिंग अस टू बी हेल्दी. तो जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है विच मॉनिटर्स और रेगुलेट्स आपका हेल्थ चार्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स अक्रॉस द ग्लोब, जो डिटरमिन करता है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए किसी भी डिजीज के लिए या किसी भी एक हेल्दी स्टेटस के लिए. सो इट स्टेट्स दैट हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फॉर्मिटी. तो हेल्दी किसको बोलते हैं?
तो हेल्दी इज नॉट कि आपको कोई डिजीज नहीं है और लाइक यू आर फिट एंड फाइन, आपको ऐसे लग रहा है तो यू आर हेल्दी। हेल्थ एक्चुअली हु के डेफिनेशन के हिसाब से भी it should be, you know, complete well-being, not only of your physical appearance but your mental and social well-being also. तो ये जो चीज होती है, जो 3 dimensional आउटलुक है, दिस एक्चुअली इज होलिस्टिक वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। और ये जो है लार्जली डिटरमिन करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट आपका फूड जो है दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंटीग्रल पार्ट, जो आपको डिटरमिन करता है, आपके होलिस्टिक वेलबींग को काफी इन्फ्लुएंस करता है। तो इंडियन ट्रेडिशनल फूड सिस्टम जो है, आपने आयुर्वेदा का नाम सुना होगा, जो कि हमारा इंडियन मेडिसिन सिस्टम है, हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, या हम कह सकते हैं कि इट इज एन ऑल्टरनेट ऑफ इंडियन, जो वेस्टर्न मेडिसिन का एक ऑल्टरनेट या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन सिस्टम है आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंस देता है इंडियन ट्रेडिशनल फूड सिस्टम को, ठीक है, क्योंकि इट सेज दैट हेल्दी फूड is good for your healthy lifestyle, ठीक है। तो आयुर्वेदिक संहिताज और क्लासिकल टेक्स्ट संहिताज, आप चरक संहिता सुना होगा, सुश्रुत संहिता सुना है, या अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, तो काफी सारे वेदास हैं। So all these Ayurvedic classical texts have described about the concept of ahar kalpana with details for advanced methods and preparations of meal. तो ये जो बताते हैं इनफैक्ट खाना कैसे बनाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, so that it is easily digestible, और ये सारी चीजें भी जो है हमारे क्लासिकल टेक्स्ट, आयुर्वेदिक क्लासिकल टेक्स्ट बताते हैं। सो दैट इटसेल्फ सिग्निफाइज दैट how much importance our classical texts have been given to the food that we consume. That I already told, देखिए you are what you eat, तो जो आप खाते हैं वैसे आपका आउटलुक होता है, वैसे आप दिखते हैं अपीयरेंस वाइज भी, और ओवरऑल जैसे आपके जो डिफरेंट पर्सनालिटीज या पर्सनालिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है कि आप किस तरीके का खाना खाते हैं। सो इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू मेक हेल्दी फूड चॉइसेस। तो अभी जैसे क्या है, आज के जो मॉडर्न टाइम्स है, कंटेम्प्रेरी टाइम्स में काफी सारे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, और लाइफस्टाइल चेंजेस से काफी सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हैं। आप कहेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस क्या है, तो आप ये देखोगे कि आजकल बहुत फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई है बच्चों की, ज्यादातर मोबाइल्स आ गए हैं, बच्चे मोबाइल पर ही गेम्स देख लेते हैं, बच्चे बाहर जाकर के ज्यादा नहीं खेलते हैं। लॉट ऑफ आवर ट्रेडिशनल गेम्स जैसे कबड्डी है या खो खो है, ये सारे बिल्कुल लाइक दिस आर लॉस्ट शॉर्ट ऑफ, ये खेलते ही नहीं है। और इसके अलावा जो है जैसे वर्चुअल वर्ल्ड इज एक्चुअली रियलिटी, आप ये कह सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस भी है, कभी पोल्यूशन हो जाता है तो बच्चे घर में बंद है, कभी कोई पैंडेमिक आ जाता है तो बच्चे घर पे बंद है। इट्स नॉट अबाउट बच्चे, इट्स अबाउट लाइक एल्डर्स और सीनियर्स ऑल्सो। तो हमारा ऐसा एनवायरमेंट भी अब ऐसे हो गया है कि मेनी टाइम्स हम नहीं भी चाहते हैं, इवन देन वी आर फोर्स्ड टू लाइक कन्फाइन आवरसेल्व्स टू इंडोर्स। तो ये जो इंडोर में रहना और हमेशा स्क्रीन के सामने बैठे रहना, इससे काफी सारा जो है असर पड़ता है हमारे हेल्थ पर। तो एक एक करके हम थोड़ा सा देखें, जैसे कि जंक फूड, आई ऑलरेडी टोल्ड कि बच्चों को बहुत पसंद आता है, बच्चे क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। कोक, पिज्जा, बर्गर, और आजकल इतने सारे फूड चेन्स हैं, फ्राइड चिकन, जो whoever eats नॉन वेज, तो काफी कुछ है जो रेडिली अवेलेबल है, एंड वी ऑर्डर एंड वी गेट, एंड और ये काफी लाइक हाई ऑन सॉल्ट होते हैं, क्योंकि थोड़ा मसाला ऐसा है, तो आप लोग जैसे क्या बोलते हैं इसे, बिल्कुल एडिक्ट हो जाना है ना। तो आपको इतना पसंद आता है इफ यू आर सिटिंग विद अ पॉपकॉर्न बॉक्स, आप पूरा ही लेकर के खा जाओगे। आप एक एक क्या बर्गर, आपको 2 बर्गर 3 बर्गर दे दे वो भी आप खा जाओगे। तो इट्स लाइक आपको क्रेविंग आती रहती है और आप खाते रहते हो विदाउट रियलाइजिंग कि एक्चुअली आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, आपका कितनी भूख थी, आप उसे कई ज्यादा भी खा लेते हो। तो दिस हैपेंस। तो जंक फूड जो है या बिंज ईटिंग काफी बढ़ गई है। सिडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, ज्यादातर जो है वो सिटिंग वाली चीजें हैं, अब मेहनत लोग कम कर रहे हैं। गेम्स खेलना है चाहे काम करना है, ज्यादातर आप अपने लाइक लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर बैठ करके आप कर लेते हो। फिर वही है कि जैसे सोशल मीडिया पर भी काफी लोग टाइम ज्यादा स्पेंड करने लगे। तो सोशल मीडिया पर लोग ज्यादा हैं, बट लोगों से मिलना, लाइक सोशलाइजिंग कम हो गई है। सो
we are socializing on social media actually, rather than physical socializing. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देन स्लीपलेसनेस, तो आप इतने दिन देर देर तक स्क्रीन देखते हैं, इतना लेट नाइट बिंज ईटिंग करते हैं या और भी चीजें हैं, तो स्लीप टाइम क्योंकि लेट हो गया है, तो कितनी बार आप अगर बहुत लेट जाते हो सोने तो फिर आपको नींद भी नहीं आती, या कई बार आपने देखा होगा रात को भी अचानक से नींद खुल जाती है, तो फिर then some kind of you're overthinking anything. So this kind of like sleeplessness is also that has become very common. Then lack of exercise, obviously, that I'm telling कि physical activity काफी कम हो गई, exercise वगैरह लोग नहीं कर रहे हैं। बच्चे भी यूजुअली जो आजकल थोड़ा बहुत स्कूल में करा देते हैं तो करा देते हैं, अदरवाइज लाइक एट होम आप नहीं मोटिवेट होते हो कि आप कुछ एक्सरसाइज थोड़ा कर लो। और उसके अलावा जो है ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इससे काफी ज्यादा लाइक प्रेवलेंट हो गए हैं, जैसे कि ओबेसिटी। ठीक है, तो ओबेसिटी इज लाइक वेरी वेरी कॉमन नाउ-ए-डेज। तो आपका बीएमआई ऑब्वियसली काफी ज्यादा होता है, 25 जो हेल्दी बीएमआई इंडेक्स है ज्यादा हो जाता है। वेट इश्यूज हैं आपके। उसके बाद में हाई ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल, ये भी एक जो है आजकल इनफैक्ट हाई बीपी एंड ऑल जो है, अभी यूजुअली ऐसे होता था कि 40 प्लस में ये सारी चीजें देखने मिलती थी, आजकल ये बच्चों को भी आ रहे हैं। सो दैट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। देन एंजाइटी एंड डिप्रेशन, तो जो चीजें पहले हम एडल्ट्स में देखते थे वो बच्चों में भी आ रही हैं धीरे धीरे। तो ये सब चीजें हम लाइक ऑलमोस्ट इन ऑल ऑल स्ट्रैट ऑफ सोसाइटी वी आर फाइंडिंग कि एंजाइटी और डिप्रेशन आ रहे हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेने लग रहे हैं या हैंडल नहीं कर पा रहे सिचुएशन को। तो एज पर आयुर्वेदा जो है, अगर हम हेल्दी चॉइसेस करते हैं, हेल्दी फूड चॉइसेस करते तो हम एक अच्छा हेल्दी लाइफ वी कैन लीड। ठीक है, तो दिस तो हम यहाँ से एक्चुअली अब हम एक्चुअली अपना सेशन शुरू करेंगे। इंडियन ट्रेडिशनल फूड सिस्टम को हम फंक्शनल फूड भी बोलते हैं, क्योंकि फंक्शनल फूड बोलते हैं क्योंकि इसमें जैसे जो आपका डाइटरी फाइबर है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये फंक्शनल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपको हेल्थ बेनिफिट्स इम्पार्ट करते हैं। ठीक है, तो हेल्थ बेनिफिट्स और डिजीज का रिस्क भी कम करते हैं। इट्स नॉट ओनली कि दे आर इम्पार्टिंग हेल्थ बेनिफिट्स ओनली, जो आपका रिस्क है डिजीज का अकरेंस का, आजकल इतना ज्यादा स्ट्रेस भी आजकल हो रहा है बच्चों में भी कि जैसे काफी सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ट्रिगर होने लगते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत जो है ना, वी शुड बी वेरी कॉशियस। तो आप देखोगे कि आजकल जैसे कुछ भी वेट इश्यूज है, ओबेसिटी है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, कोई सी भी चीज, तो आप डॉक्टर्स दे विल प्रेस्क्राइब कि आप बैलेंस्ड खाओ, सॉल्ट ज्यादा मत खाओ, प्रोसेस्ड फूड मत लो। आप इंडियन फूड मतलब लाइक इंडियन फूड में लाइक यू यू ईट दाल, आप दाल ज्यादा से ज्यादा पियो, चपाती लो, चावल लो, सब्जियां लो, ढेर सारा सैलड लो। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, डॉक्टर्स आर रेकमेंडिंग। तो जब डॉक्टर रेकमेंड करते हैं तो वी लाइक पे अटेंशन टू दैट। बट हम खुद से वो मोटिवेशन हम क्यों नहीं ला पाते? बिकॉज वी एक्चुअली नो वी डू नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज फूड्स, और हम मोस्टली जो अपने टेस्ट को सैटाइट करने के लिए ज्यादा हम ये करते हैं कि हमें प्रोसेस्ड फूड ज्यादा अच्छा लग रहा है, ज्यादा टेस्टी लग रहा है, तो लाइक वी आर काइंड ऑफ इंक्लाइंड टू हैव दैट फूड। तो ये जो फंक्शनल फूड है, जो इंडियन हमारा फूड सिस्टम है, ये एक्चुअली फंक्शनल फूड होता है क्योंकि इट इज अ ब्लैंड ऑफ हाई डाइटरी फाइबर्स। फैट का लेवल काफी मॉडरेट होता है, दे हैव गुड अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन रिच होते हैं। तो सो यू कैन नो सेफली से दैट इंडियन ट्रेडिशनल फूड इज अ कंप्लीट मील फ्रॉम विच द आइडिया ऑफ बैलेंस्ड डाइट हैज इवॉल्व्ड। ओके, तो इंडियन जो हमारा जो सिस्टम है फूड का, इसमें आप देखोगे यूजुअली थाली कॉन्सेप्ट होता है। मतलब आप इसे पैकेट से निकाल के कुछ नहीं खाने लगते हो। इंडियन फूड अगर आप कहोगे तो इट्स ऑलवेज की प्लेट लगाओ। और प्लेट क्या लगती है, तो उसमें आप घर पर भी देखोगे, रात का डिनर कर रहे हो या दिन का खाना खा रहे हो, तो मम्मा आपको दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सैलेड, तो ये एक एक मतलब एक मिनिएचर थाली की मैं बात कर रही हूँ कि इतना होता है। बट इवन अगर आप कोई इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहां पे
अगर आप थाली ऑर्डर करते हो तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो जो थाली का जो जैसे पोर्शन आप देखोगे तो उसमें एक पोर्शन शुड बी कार्बोहाइड्रेट वैसे होता है, एक पोर्शन प्रोटीन का होता है, दाल है, एक प्रोटीन फैट्स का होता है, जिसमें कि आप कुछ भी फ्राइड जैसे पापड़ है या कुछ घी वगैरह का आइटम वो ले है उसमें, देन वाइटामिन एंड मिनरल्स का आइटम होता है, रफ वेज होता है, वाटर का अमाउंट होता है। तो ये जो पोर्शन है ये आप देखोगे कि हमारा जो इंडियन थाली का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको एक बैलेंस्ड मील मिले, जितनी भी टाइम यू आर ईटिंग यू शुड बी हैविंग अ बैलेंस्ड मील। ठीक है। सो थाली में क्या क्या है, आपका सीरियल बेस्ड फूड होता है, पल्स बेस्ड फूड होता है, रॉ फ्रूट या वेजिटेबल बेस्ड फूड होता है, कुक्ड वेजिटेबल बेस्ड फूड होता है, और मिल्क प्रोडक्ट बेस्ड फूड होता है। ठीक है, जैसे आप देखोगे कोई थाली में अम, खीर हो जाएगी, कुछ मीठा हो जाएगा, कुछ सब्जियां हो जाएंगी बनी हुई, कुछ सैलेड रहता है, दाल होती है, कई तरीके की, एक दो तीन तरीके की दालें देते हैं, सीरियल बेस्ड, जैसे रोटी हो गई, चावल हो गए। तो इस थाली एक्चुअली सर्व द कंप्लीट मील एंड इट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन बट द बेसिक कंपोनेंट्स रिमेन सेम। अब मैं क्या कह रही हूँ कि रीजन टू रीजन क्यों चेंज करते हैं, जैसे मैं जो नेक्स्ट स्लाइड है ये एक एग्जांपल है। आप राजस्थान की थाली देखो या केरल की थाली देखो, ठीक है, अ, थाली में उनके फूड आइटम्स अलग अलग हो सकते हैं एज पर द लोकल इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल, एज पर द टेस्ट जो वहाँ पे या कुकिंग प्रेफरेंसेस, बट उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कार्बोहाइड्रेट इतना, फैट, प्रोटीन रिच, नो वेजिटेबल एंड फ्रूट बेस्ड डाइट। तो जो मैंने आपको जो जो बताया कि जो इतना इतना बेसिकली एक होलिस्टिक वेलबींग के लिए हमें जो कंप्लीट डाइटरी जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए तो उस हिसाब से अरेंज होता है। सो वेदर इट्स अ राजस्थान की थाली, वेदर इट्स अ केरला थाली, वेदर तमिल थाली, वेदर इट्स और इज अ दिल्ली थाली और यूपी की थाली या नॉर्थ ईस्ट की थाली, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि आपको एक वेल बैलेंस्ड मील मिले, कंप्लीट मील मिले। सो इंडियन ट्रेडिशनल जो फूड है उसको हम लोग हेरिटेज फूड भी बोलते हैं। अब हेरिटेज फूड क्या है, क्योंकि ये हेरिटेज इज लाइक आपका जो कल्चर है, जो आपका पार्ट एंड पार्सल है, जो काफी थ्रू जनरेशंस दैट हैज कम। So Indian food, traditional food, is actually an integral part of Indian culture. It is influenced by different geographical boundaries. It is also directed by different climatic conditions. क्योंकि आपका जो इंडियन फूड है ये ऐसा नहीं है कि जैसे राजस्थान है या आप लद्दाख में हो या आप लेट्स से गोवा में हो या आप मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में हो, आपका पूरा क्लाइमेट, आपका पूरा ज्योग्राफी चेंज होता है और आपका खाना भी उस हिसाब से ही जो है इन्फ्लुएंस होता है। आप अगर आप जैसे राजस्थान में आपके सी नहीं है या फिर इससे बहुत वाटर नहीं होता तो फिश बेस्ड फिश फिश नहीं होता एज ए इंटीग्रल पार्ट आपके फूड का, बट वही जो कोस्टल एरियाज में फिश इंक्लूडेड है। या लोकल फ्रूट्स, अब जैसे पीच एंड पेयर बेस्ड जो फ्रूट बेस्ड जैसे लद्दाख या कश्मीर रीजन में काफी फूड उस तरीके से बनते हैं, बट वो वैसा आइटम आपको कहीं और दूसरे रीजन में नहीं मिलेगा। तो व्हाट आई मीन टू सी से इज दैट the Indian food is actually influenced by the geographical boundaries, by the climatic conditions, डिपेंड्स अपॉन लोकली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स, किस तरीके के क्रॉप्स वहां पे होते हैं। अगर राइस आसाम में ज्यादा है तो उनका उस तरीके का आपका जो इंडियन फूड है वो उस तरीके से डिटरमिन होता है, इंस्पायर्ड बाय डिफरेंट एथनिसिटी एंड कम्युनिटीज, कम्युनिटी के हिसाब से भी चेंज करता है, एंड इम्पैक्टेड बाय सोशियो पॉलिटिकल इवेंट्स ऑल्सो। सोशियो पॉलिटिकल इवेंट में जैसे शादी का खाना थोड़ा अलग होगा, नॉर्मल खाना थोड़ा अलग होगा। तो मतलब ये या फिर कोई 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 त्योहार है जैसे मकर संक्रांति पे आपके यहाँ तिल का कुछ बनेगा। तो व्हाट आई मीन टू से इसकी ये आपका जो कल्चरल कल्चर से या रिलीजियस फेस्टिविटी से काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड हमारा इंडियन ट्रेडिशनल फूड होता है। तो आयुर्वेदा जो है ये एंशियंट साइंस है फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल।
और आयुर्वेदा कैसे डायरेक्ट करता है हमारे इंडियन ट्रेडिशनल फूड को, वो हम समझेंगे। तो क्या होता है कि आयुर्वेदा जो है वो 3 तरीके के दोष की बात करता है। किसी भी ह्यूमन को अ, अगर बॉडी टाइप के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें, तो या तो वो पित्त प्रवृत्ति का है, या कफ प्रवृत्ति का है, या वात प्रवृत्ति का होता है। तो ये त्रिदोषा कॉन्सेप्ट है आयुर्वेदा में कि हर इंडिविजुअल की जो प्रवृत्ति होती है वो अलग-अलग होती है, प्रकृति अलग-अलग होती है। तो पित्त, कफ एंड वात बोलते हैं। तो इसमें जो है जैसे हमारे कहते हैं ना एयर, फायर, वाटर, जैसे जो हमारे जो पंच महाभूत हैं या जो एलिमेंट्स हैं, तो वात जो है वो कहते हैं कि एयर से डिटरमाइन होता है, जो पित्त है वो फायर एलिमेंट से डिटरमाइन होता है, कफ जो है वो वाटर एलिमेंट से डिटरमाइन होता है, मतलब जो बॉडी टाइप है प्रकृति लोगों की। तो अगर वात से अगर आपका इम्बैलेंस इन वात, तो आपका जो है एंजाइटी, डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, आर्थराइटिस, इस टाइप की जो डिजीजेस के ज्यादा प्रोन होते हैं। जिनका पित्त प्रकृति होती है, उन्हें ब्लड एंड स्किन रैशेस, डिजीज, हेपेटाइटिस, इन्फेक्शन, या ज्यादा वो गुस्से वाले होते हैं, बिकॉज वो ना आपका जैसे आउटलुक को भी काफी डिटरमिन करता है। देन कफ की जो अगर देयर इज इम्बैलेंस इन कफ, जो वाटर इम्बैलेंसमेंट के कारण है, तो ओबेसिटी, डायबिटीज, स्लो स्लो कंजम्पशन, स्वेलिंग्स, ट्यूमर्स, तो इस टाइप के डिजीजेस होने का खतरा ज्यादा होता है। सो इट इज लाइक दैट। अब आयुर्वेदा जो है ये कई तरीके की हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट्स को भी रेकमेंड करता है कि डेली मील में इंक्लूड करना है एज एंटीऑक्सीडेंट। एंड इफ यू इंक्लूड हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स, तो आपके फूड का सेल्फ लाइफ भी बढ़ता है। आयुर्वेदा क्लेम्स दैट अ प्रॉपर टाइमली मील कैन कीप द मेडिसिन एट बे. The Indian traditional meal is so designed that it stimulates all the taste buds of the tongue, which increases the appetite. तो सॉरी, ये मेरा क्वेश्चन, अच्छा, देयर हैज बीन सम इशू। एनीवेज, तो यहाँ पे है कि इंडियन ट्रेडिशनल मील जो है इस तरीके से जो डिजाइन है कि आपकी जो टेस्ट बर्ड है ना, खट्टा, मीठा, तीता, मीठा, ये सारा जो टेस्ट बर्ड है ये स्टिमुलेट करता है, तो आपका जो एपेटाइट है वो बढ़ाने का काम करता है। तो एज पर आयुर्वेदा, जो 3 फूड को अगर हम कहें, और जो हमारा स्वस्तिक इनिशिएटिव है वो मैं थोड़ा सा आपको बाद में बताऊंगी स्वस्तिक के बारे में। तो उसमें हम ने जैसे एक स्टोरी भी करी इंडियन ट्रेडिशनल फूड पे। तो उसमें हम कहते हैं कि फूड डिटरमिन करता है 3 फूड के गुण है, जैसे सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो फूड्स जो है ये 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है, बेस्ड ऑन देयर इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑन द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ द पर्सन हु कंज्यूम दैम। जैसे सात्विक फूड इंक्लूड कुक्ड वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रेश फ्रूट्स, हनी। राजसिक फूड इज लाइक एक्सेस सॉल्ट होता है उसमें, खट्टा होता है, रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, डीप फ्राइड फूड होता है। और जो तामसिक फूड को हम जैसे फ्राइड फ्रोजन या प्रोसेस्ड फूड या मीट या लिकर, ये सारे तामसिक फूड की कैटेगरीज में आते हैं। ट्रेडिशनल फूड सिस्टम जो है इंडिया का, वो ऋतुचर्या पर भी बेस्ड होता है। अब ऋतुचर्या क्या है? सीजन वाइज, जैसे आयुर्वेदा जो बताता है कि आपको सीजन के हिसाब से खाना खाना चाहिए। अब इसमें जैसे मैं बता रही हूँ कि ये आपका लेट्स से समर है, तो ये आयुर्वेदा रेकमेंड जो है सीजनल हैबिट। जब आपका सनलाइट बहुत इंटेंस है, आपका मॉइस्चर लेवल कम है, तो बॉडी कैसे चेंज हो रहा है? क्योंकि मॉइस्चर आपके शरीर से, वो पसीना निकल रहा है, ठीक है, तो आपके शरीर से एक्सक्रीशन हो रहा है स्वेट का, तो आपकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि आई एम नॉट एन आयुर्वेदाचार्य, तो मैं बहुत ज्यादा आपको इसके डिटेल्स नहीं बता पाऊंगी कि जैसे वात और कफ और पित्त में क्या इम्बैलेंसेस आते हैं। बट गर्मियों में वात एक्यूमुलेट होने लगता है, जो वाटर मतलब आप, क्योंकि आप यू यू टेंड टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि गर्मी ज्यादा है। तो इस समय आपकी जो डाइट रेकमेंडेड होती है कि आप स्वीट कूलिंग लिक्विड खाएं, फूड खाएं, और राइस आप खाएं, है ना। इफ वन देन रेकमेंडेड लाइफस्टाइल है कि आप
ठंडी जगहों पे रहें, मतलब ऐसा नहीं कि गर्मी है और आप फिर बहुत तेज गर्म जगह पे ही जा रहे हैं। So during daytime, you stay in cold places. At night, sleep under the moonlight by applying chandan to the body. मतलब ये कुछ ऐसे लाइफस्टाइल हैं, दो हम सारा फॉलो नहीं कर सकते हैं, बट जितना हम कर सकते हैं वी शुड डू। ठीक है। और गर्मियों में जैसे अवॉइड करना, अगर फ्रूट की बात करें तो हम सॉल्टी सावर फ्रूट्स और पंजेंट फ्रूट्स और गरम मसाला इस टाइप की चीजों को बोलते हैं कि आप अवॉइड करें। सिमिलरली जब रेनी सीजन आ रहा है, तो रेनी सीजन में क्या होता है कि आपकी सनलाइट कम है, आप है आपको भूख भी रेनी सीजन में थोड़ा कम लगता है। और जो तीनों दोष जो है वो थोड़ा इम्बैलेंस होने लगते हैं। तो यूजुअली आपका जो जनरल रेजिमेन जो है कंसिस्ट ऑफ ऑल दोषास इन प्रकृत अवस्था, मतलब नॉर्मल स्टेट में तीनों दोष रहें, वो फॉलो करना चाहिए। आप हनी डाल करके, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर, क्योंकि बारिश में इन्फेक्शंस का ज्यादा खतरा होता है, तो आपको जैसे हनी डाल करके ड्रिंक्स में लेना चाहिए या इटेबल्स में। और रेकमेंडेड लाइफस्टाइल इज लाइक आप आप नहाते रहिए, आप प्रॉपर मेडिकेटेड पाउडर यूज करिए, मेडिकेटेड ड्रग्स एंड पेस्ट ओवर द बॉडी आफ्टर बाथ, और कूल लिक्विड्स, और दिन में सोना, और नदी का पानी पीना, क्योंकि वो गंदे हो सकते हैं, फ्लडिंग होती है रिवर्स में, तो ये सब चीजें अवॉइड करने को बोलते हैं। अ, शरद ऋतु में भी है कि जैसे सनलाइट थोड़ी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, बट इसमें जो है आपका पित्त दोष जो है वो थोड़ा इम्बैलेंस होता है, डाइजेस्टिव इस समय कम होता है। तो आप जो है वैसे फूड लें जो थोड़ा मीठा डोमिनेंट, मीठा हो, हल्का हो डाइजेस्ट करने के लिए। और आप जो है राइस, बार्ली और व्हीट बेस्ड डाइट ले सकते हैं। recommended lifestyle is to आपको जो है बिटर मेडिकेटेड घी, और जैसे मैं क्या बोल रही हूँ, थेरेपेटिक पर्गेशन और ब्लड लेटिंग प्रोसीजर्स, तो ये तो खैर हमारा थोड़ा सा ये बच्चों के लिए हायर इस पे हो गया, बट एनीवेज वी नीड टू हैव अ नॉर्मल लाइफस्टाइल। देन टू बी अवॉइडेड इज टू एक्सपोज डायरेक्टली, जो है आप सनरेज का एक्सपोजर ना लें, और मीट वगैरह खाना थोड़ा कम करें। ठीक है। इसके बाद ठंड की जो समय है, तो ठंड में भी इट्स लाइक द रेकमेंडेड डाइट इज टू आप शावर, थोड़ा सा सॉल्टी ले सकते हो खाना, और मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, गर्म पानी, ये सारी चीजें। और रेकमेंडेड लाइफस्टाइल इज दैट यू शुड बी क्योंकि हेयर फॉल का भी काफी ज्यादा विंटर्स में रहता है, तो आप ऑयल मसाजिंग करें, और वार्म प्लेसेस में रहें, जहाँ कम हवा चल रही है वैसी जगहों पे रहें, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रहें। और स्पाइसी और एस्ट्रिंजेंट और बिटर खाना ये सब थोड़ा सा कम कर सकते हैं, और दिन में ना सोएं। तो इस तरीके से जो 6 ऋतुओं के हिसाब से आपके 6 तरीके के जो है ये लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन, डाइट रिकमेंडेशन हैं। उसके बाद जो है इंडियन ट्रेडिशनल फूड सिस्टम की, तो ये जैसे मैंने ये बोला कि आपके सीजन के हिसाब से कैसे कैसे खाना होना चाहिए, बट इंडियन ट्रेडिशनल फूड सिस्टम ये भी बताता है कि ना खाना कैसे बनाना चाहिए, आपका मिनिमम वेस्टेज हो ऑफ फूड व्हाइल कुकिंग, ये भी जो है इज इंश्योर्ड। सो एवरी पार्ट ऑफ द फ्रूट और वेजिटेबल को आप एक्चुअली कई तरीके से यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट ईच अदर। तो फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स जैसे कि फर्मेंटेशन, स्प्राउटिंग, बॉइलिंग, माल्टिंग, सोकिंग, दे ऑल प्ले अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिशनल फूड सिस्टम्स इन इंडिया। ठीक है। तो आप यूजली देखोगे स्प्राउट्स कहते हैं खाने के लिए, तो स्प्राउटिंग है, या जैसे इडली या डोसा बैटर बनता है तो काफी फर्मेंटेशन, कर्ड हम काफी खाते हैं, तो कर्ड भी एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। तो फर्मेंटेशन है, या ये सारी जो मैंने यहाँ पे टेक्निक्स लिखी हैं, these are all traditional food preparation techniques that have been used since ages, and ये आयुर्वेदा भी इनके बारे में हमें बताता है। देन कुकिंग टेक्निक्स जैसे कि फ्राइंग, बेकिंग, रोस्टिंग, स्टीमिंग, ये भी जो है ट्रेडिशनल फूड सिस्टम्स ऑफ इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। तो फ्राइंग वगैरह भी हम करते हैं। दो स्टीमिंग एंड रोस्टिंग इज क्वाइट ओके, बट फ्राइंग जो है थोड़ा सा हमें लिमिटेड इसमें करना है।
Then spices are added as herbs to the meals as they have therapeutic properties. अच्छा, अब इंडियन खाने में क्या एक और बहुत ही जो यूनिक चीज है कि हमारे जो इंडियन स्पाइसेस हैं, they're all, all spices are actually medicinal herbs. आप क्लोव्स ले लो, गार्लिक ले लो, जिंजर ले लो, नटमेग ले लो, दालचीनी ले लो, whatever. They're all कोरिएंडर है, फेनुग्रीक है, सबके बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। और क्योंकि हम इनको जो है, जैसे हमारा जो फूड प्रिपरेशन रेकमेंड करता है इनका यूज, जैसे हम हल्दी तो हर चीज में ही डालते हैं टर्मरिक, लेट्स से, तो टर्मरिक इज अ वेरी वेरी गुड एंटीसेप्टिक, इज अ वेरी गुड थेरेपेटिक एजेंट अगेंस्ट, आपको इम्यूनिटी बूस्टर है, वुंड हीलिंग और इम्यूनिटी बूस्टिंग में बहुत हेल्प करता है। तो ये जो स्पाइसेस हैं, ये हमारे इंडियन फूड प्रिपरेशन का इंटीग्रल पार्ट है। और ये जो है इनका यूज करके एक्चुअली वी आर having we are actually getting some kind of health benefits, और या जो हमारा रिस्क है डिजीज को, क्या बोल रही हूँ, अकरेंस का, वो काफी कम हो जाता है, बिकॉज वी आर यूजिंग लॉट्स ऑफ स्पाइसेस which are all medicinal herbs, and with a lot of health benefits and therapeutic properties. Black pepper आप कह लो, coriander कह लो, yeah, you name it, and yeah, all have a lot of health benefits. तो इसके बाद कुछ जो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ग्रेन बेस्ड फूड्स अभी और कुछ फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स भी काफी इम्पोर्टेंट हैं और काफी पॉपुलर हैं। तो फूड इज बैलेंस एंड पर्सनलाइज्ड थ्रू ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग मेथड, जैसे फर्मेंटेशन, सोकिंग, बॉइलिंग। तो ये अलग अलग पार्ट्स में हम इन चीजों को यूज करके, इन टेक्निक्स को यूज करके अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके का food we are preparing. ठीक है, so these are all traditional grain based health foods that we are having. Then culinary abundance and diversity. So Indian traditional food is known for its many delicious dishes that feature healthy ingredients like jackfruit seed की चटनी, mango pachadi, bale fruit का juice, banana का stem पाल्या. So these are like different parts का example मैं बता रही हूँ, अलग अलग country, अलग अलग regions of this country में किस किस तरीके की रेसिपी मिलती है। And this is just example. There are thousands of recipes, in India. India is having. So India is a land of, you can say, culinary abundance and diversity. Yeah, so whether it is, milk-based food, grain-based food, vegetable-based food, protein-based food, you will find diversity. Then classification incompatibility of foods. तो अभी क्या है कि कुछ आयुर्वेदा इसकी भी बात करता है कि आप there are certain foods which are basically opposite to each other, that like जैसे जिनकी दो opposite nature है, आप उनको इकट्ठा ना लो। जैसे मिल्क के साथ सॉल्ट मत लीजिए, टमेटो के साथ क्यूक्यूम्बर मत लीजिए। तो क्योंकि दोनों की फूड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग है, तो वो आपका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट हो सकता है। तो आयुर्वेदा जो है इज अ वेरी यूनिक एस्पेक्ट ऑफ आयुर्वेदा, दैट इट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट फूड इनकॉम्पेटेबिलिटीज। विरुद्ध आहार का कॉन्सेप्ट भी आयुर्वेदा लेके आता है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देयर 18 फॉर्म्स ऑफ इनकॉम्पेटेबिलिटी। ठीक है, कि 18 तरीके के जो है विरुद्ध आहार होते हैं। जैसे कि सावर फ्रूट, खट्टे फ्रूट के साथ आप मिल्क मत लें, मिल्क के साथ आप चना मत लें, जैक फ्रूट ना लें, मिल्क के साथ आप फिश ना लें, हनी को आप गर्म ना करें। तो सो दीज आर ऑल like different aspects of food incompatibilities। और फूड मटेरियल्स जो हैं वो आप उनको एक्चुअली क्लासिफाई कर सकते हैं टेस्ट, क्वालिटी, पोटेंसी, पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट एंड थेरेपेटिक एक्शन के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद जो है न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो ये भी है कि इंडिया जो डाइटरी रिकमेंडेशंस हैं उनका कार्बन फुटप्रिंट, अगर आप कहें कि वेस्टर्न फूड की विज इंडियन फूड की बात करें, तो हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो है वो काफी कम है। जैसे एक सर्वे अभी हुई थी 7 कंट्रीज के फूड के ऊपर कि कार्बन फुटप्रिंट वो कितना होता है, तो ये इन 7 कंट्रीज के डाइटरी रिकमेंडेशंस और इंडियाज डाइटरी रिकमेंडेशंस के कंपैरिजन में ये देखा
कि India's dietary recommendation had the lowest carbon footprint. So in conclusion, we can say that diet that includes Indian traditional food is beneficial for both nutritional and environmental considerations. ठीक है, तो ये भी एक चीज है. देन इम्पोर्टेंस जो है और भी चीजें जैसे कि फास्टिंग का इम्पोर्टेंस. ठीक है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक आयुर्वेदा का ही एक्चुअली कॉन्सेप्ट है जो कि मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी उसको काफी बूस्ट करने में हेल्प करता है. जैसे कि आपकी फास्टिंग आप देखोगे कि इंडिया में हर कुछ भी तीज त्योहार होती है तो आपको कहते हैं फास्ट करो, इतने से इतने दिन का फास्ट करो, निर्जला फास्ट करो, ना पानी मत पियो, या कोई भी आप देखो एकादशी का है, बहुत सारे तीज हैं, या आपने कुछ कुछ देखा होगा, या चतुर्थी के फास्ट होते हैं. तो इसे क्या होता है, ये जो फास्ट जो बीच बीच में रेकमेंडेड हैं जो हमारे एक्चुअली कल्चरल हेरिटेज का एक पार्ट है. तो ये फास्ट से क्या होता है कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई होने में हेल्प मिलती है. क्योंकि जब फास्ट आप कर रहे हो तो आप खाते नहीं हो, आप अनाज नहीं खाते, आप कुछ घंटों के बाद, लेट्स से 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे के बाद खाते हो, बीच में आप कुछ नहीं खाते, या सिर्फ आप पानी लेते हो, या लाइक कुछ जूस वगैरह उस टाइप की चीजें. तो इससे क्या होता है कि आपको आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई होने में मदद मिलती है. तो वो जो हीलिंग होती है अपनी इंटरनल हीलिंग, क्योंकि जैसे बॉडी इज ऑल्सो मशीन. तो आप डालते जा रहे हो, रात को बिल्कुल जैसे 9 बजे खाना खाया और जाके सो गए, अब बॉडी जो है वो पचा रहा है, 4 घंटे तो उसको पचाने में लगे क्योंकि 9 बजे आपने खाना खाया है. तो वो क्या होता है, और कितनी बार अगर आपने 11-12 बजे जग गए, लेट्स से है ना, अब वीकेंड्स हो रहा है, फ्राइडे हो रहा है, आप 11 मूवी देख रहे हो, 11 बजे तक जग गए, फिर आप 11 बजे खाना खा रहे हो या कुछ बिंज ईटिंग कर रहे हो, और फिर वो बॉडी जो है उसको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, वो फिर उसको पचाने में लगा हुआ है. तो आपको लग रहा है कि आप सो रहे हो, बट एक्चुअली योर बॉडी इज एक्चुअली वर्किंग, कंटिन्यूअसली वर्किंग. अगर आप कंटिन्यूअसली वर्क करेगा तो आप वो जो बॉडी का जो एक मैकेनिज्म होता है ना, जैसे खाने में जो विटामिन है, जो मिनरल्स हैं, जो एब्जॉर्प्शन जो होती है एक्चुअली, वो नहीं होती, वो कम हो जाती है. तो तो ये जो जो कंटिन्यूअस जो चर्निंग प्रोसेस करते रहते हैं, तो दैट हैज टू बी थोड़ा ब्रेक करना चाहिए उसको. तो थोड़ा सेल्फ कंट्रोल करना है. आप लोग अगर छोटे बच्चे हैं अभी तो आप लोगों के लिए तो नहीं, बट थोड़ा सा जैसे आप थोड़ा बड़े हो जाए, 17-18 ईयर्स, और इस समय जैसे यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी. तो कुछ कुछ घंटे का ब्रेक दे करके ना, यू कैन ट्राई फास्टिंग शॉर्ट ऑफ थिंग्स, जो कि विच इज वेरी वेरी एक्चुअली हेल्पफुल to boost your metabolism. देन उसके बाद एक आयुर्वेदिक क्लॉक की भी बात होती है. आयुर्वेदा जो है वो एक आयुर्वेदिक लाइक फूड इंटेक और दूसरे लाइफस्टाइल एक्टिविटीज के लिए भी उनके हिसाब से आयुर्वेदा एक क्लॉक रेकमेंडेट करता है. जैसे कि 12 बजे, जैसे जैसे जब बिल्कुल दोपहर हो रही है, तब उस समय आपको कैसा खाना खाना चाहिए, 2 बजे कैसा खाना खाना चाहिए, 6 बजे कैसा, मतलब इट डिपेंड्स कि आपका जो मॉर्निंग से लेके जो नाइट तक का जो बायोलॉजिकल क्लॉक चल रहा होता है, जो डे क्लॉक चल रहा होता है, उसके हिसाब से आपको अपने बॉडी को भी अलाइन करना है. जैसे एक चीज ये भी है, आपने ये भी सुना होगा कि यू शुड ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग. फिर खाना इज लाइक नॉर्मल खाना दिन का, और रात का खाना कहते हैं यू ईट लाइक अ बेगर. अब इसका क्या मतलब है, अ, जो मैं कहती हूँ, जो हमें हमने ये कहा, जो हम सुन रहे हैं कि यू शुड हैव ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, तो इसका ये मतलब नहीं हो रहा है कि आप बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा खा रहे हैं. किंग जो होता है उसको ऐसा नहीं है कि उसको अभी ब्रेकफास्ट में ही मिलेगा खाना और फिर उसको लंच में कुछ नहीं मिलेगा, डिनर में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं, तो ऐसा अगर सारी चीजें खा लें या बहुत सारा खा लें, ये कॉन्सेप्ट नहीं है. ये जो जो ये कहावत है, जो ऐसे लोग बोलते हैं, तो इसका ये मतलब है कि अगर आपको जैसे जो राजा होता है ना, वो क्या खाता है, वो बेस्ट ऑफ चीजें खाता है, बिकॉज ही इज द किंग. तो उसको बहुत ही अच्छा, जैसे जो बेस्ट चीज अवेलेबल है, जो बेस्ट रिसोर्स अवेलेबल है,
वो उसको परोसी जाती है। तो you should also be eating you're breaking your fast in the morning with the best available food ingredient that is available with you, with जैसे best of fruits, milk, कुछ ऐसी चीज जो आपके घर में readily available हो और good quality हो, ठीक है। और रात में ये है कि आपको मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत ज्यादा रात में खाना है, इसलिए कि जो थोड़ा मिल रहा है, जो कुछ भी है, आप थोड़ा भी खा लोगे तो रात का काम चल जाएगा। बट इन द मॉर्निंग यू शुड बी हैविंग अ वेरी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस मील। मैं वो कहना चाह रही हूँ एक्चुअली, ठीक है। देन जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फूड हैबिट्स एंड डाइटरी प्रिपरेशंस हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, तो इसमें क्या है कि काफी सारे रिसर्च काफी हुई है इसमें, और उनके सिग्निफिकेंस काफी बताए गए हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इंडियन फूड्स में और ये चीजें, तो मैंने थोड़े स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर डाले हैं, आप इन चैप्टर्स को गो थ्रू कर सकते हो, थोड़ा पढ़ करके, like you can enhance your knowledge. I'm just trying to give you some references here. So discipline, nutrition, variety, goodness, sustainability and simplicity, these are the key features of Indian traditional food system, ठीक है। और इसी में जब मैं स्वस्तिक की बात कर रही थी, मैंने जैसे बोला कि एक इनिशिएटिव है हमारा जो कि हमने लॉन्च किया है at CSIR National Institute of Science Communication and Policy Research, जहाँ पे हम Indian traditional knowledge and practices which are scientifically validated उसकी हम बात करते हैं, उसको disseminate करते हैं to the general public, and it was launched upon the clarion call of our honorable Prime Minister. तो इस इनिशिएटिव को अभी लगभग 46 कंटेंट हमने जो है ऐसा डिसेमिनेट किया है डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस एंड इंग्लिश में। और इसमें भी हमने जो है आपके 2 सीरीज जो एक्चुअली इंडियन फूड पर हमने किया है, दैट आई वांटेड टू एक्चुअली शो। तो एक है ये जो हमारे सीरीज का नाम था इंडियन ट्रेडिशनल फूड एंड इनसाइट, जिसमें कि हमने इंडियन ट्रेडिशनल फूड के बारे में बताया हुआ है। उसके अलावा एक हमने फर्मेंटेशन पर एक सीरीज करी थी, जो कि इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग मेथड। तो और हमने जैसे फर्मेंटेशन के हिसाब से, जैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में कौन कौन से फर्मेंटेड फूड्स खाए जाते हैं या मोस्ट प्रेफर्ड है, वो भी हमने यहाँ पर बताया है। लाइक इट इज जोन वाइज, लाइक व्हाट काइंड ऑफ फर्मेंटेड फूड्स वी आर ईटिंग इन इंडिया। तो पोएता भात जैसे ये आसाम का बहुत ही ट्रेडिशनल फर्मेंटेड राइस होता है। lot of it's rich in probiotics, and is very good for your gut health, for your metabolism. तो और इसको पोएता भात, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल बता रही हूँ, ये आसाम में तो इज लाइक पोएता भात, बट इन ओडिशा इट इज पंता भात, इन बंगाल इज पाखला भात। तो लाइक या फर्मेंटेड फूड, जो फर्मेंटेड राइस है, ये डिफरेंट नॉर्थ ईस्ट के, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग नामों से इसको जानते हैं, लाइक दिस। तो और एक जो है इस साल, बिकॉज इट वाज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो हमने माईगव जो है ऑनलाइन सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म, उसके साथ पार्टनरशिप करके हमने अभी 2 एक्टिविटीज ऑलरेडी हमने क्लोज कर ली है। एक आपकी ट्रेडिशनल मिलेट रेसिपीज हमने कॉल आउट करी थी, जो कि 31 अगस्त को कंप्लीट हुआ। दूसरा जो है ट्रेडिशनल वेज टू प्रोसेस मिलेट, वो एक एक्टिविटी करी थी जो कि नवंबर 30 को क्लोज हुई। और अभी एक अपकमिंग इवेंट है ऑन द ट्रेडिशनल वेज टू स्टोर मिलेट, सो दैट इज मोस्ट लाइकली विल बी रोलिंग इट आउट बाय 15th of December. So yeah, so so at the end I would just say that to eat is a necessity. खाना के बिना आप नहीं रह सकते, लेकिन इंटेलिजेंटली खाना कैसे खाएं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटेलिजेंट ईटिंग इज एन आर्ट, so try to make healthy choices, try to eat intelligently. Yeah? Thank you. So yes, my talk is over, Thank you and so much, ma'am. yeah, Thank you for delivering this insightful session on Taste the Tradition, a workshop on Indian foods for holistic well-being, Mhm. and helping us to discover this rich world of Indian foods
Mhm. and its contribution to how to our holistic well-being. Mhm. I'd really, I'd like to extend a heartfelt thank you to you for taking the time and sharing your expertise with us. And your expertise and guidance, like always, they have been undoubtedly benefited a number of students today also. So from the camp team, we are immensely grateful for your time and knowledge. Thank you so much. Thank you. And we look for more opportunities to collaborate with you. Mhm. And Swasti. Okay. Me too. Same. Same here. Yeah. Okay, so we can move on to the questions now. So if students, if you have any questions, please raise your hands and we will pick you up one by one and you may ask your question to Dr. Charulata. If you have any question, please raise your hand. Can be any normal, simple question. You can just, don't be afraid to ask. Okay, we have, Gautam is raised one. Yeah. yes. Gautam, please unmute yourself and ask your question. Thank you. I had this doubt since the beginning of this session. Since when we are following this method in India of Since our when? food style? अभी ये जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं टाइम इफ यू आर आस्किंग फॉर टाइमलाइन देन आई वुड से लेट्स से आयुर्वेदा इज 5000 years old roughly. तो हम and since ayurveda is guiding lot of food preparation methods, serving, dietary intake, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो हेरिटेज है 5000 साल पुराना है. बट आयुर्वेदा के पहले से भी, अगर आयुर्वेदा जो है वैदिक पीरियड में आया है, बट उसके पहले से भी जो जो लोकल प्रेफरेंसेस हैं वो तो चल ही रहे होंगे. जो प्रिंसिपल्स एंड अदर थिंग्स जो डॉक्यूमेंटेड है, लाइक दैट वी कैन सेफली से दैट कि वो 5000 years. That is What what. was the system before the Ayurvedic periods, before the 5000 years? Oh, that I also don't know. मैंने जैसे बोला कि local ingredients की availability, climatic conditions, geographical boundaries, that all have influenced and determined कि किस तरीके का खाना खाना चाहिए. Maybe we do not have any documented proof for that, but it might be, an integral part of our, culture and heritage. जो कि बाद में आयुर्वेदा ने डॉक्यूमेंट किया होगा आयुर्वेदिक टेक्स्ट में. Okay. Thank you, ma'am. I'm exactly not a very right person to answer कि उसके पहले क्या हो रहा है, but yeah. Yes. We have a It says- question from Yashwat. Yashwat, please can you unmute yourself and ask your question? Thank you, sir. Ma'am, ma'am, my question is that, ma'am, it is generally we have a staple food of our own place, ma'am, but in the many of the cases in the market, everywhere, ma'am, the staple food of other areas or the junk food is encouraged in the market by what is the reason the encouraging the other food and neglecting the staple food of one particular area by the particular people in those areas? नहीं, you should not be negligent to your own. जैसे मैं जैसे यूजुअली इज अ थंब रूल. आप एक थंब रूल है कि किसी भी, जैसे अभी नॉर्थ में इट्स कोल्ड सीजन, तो आप लोकली जो अवेलेबल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आप वो खाएंगे. मार्केट में तो अब जैसे ऑल द टाइम, क्योंकि ग्रीन हाउस हमारे पास ग्रीन हाउसेज अब बन गए हैं, पॉली हाउसेज हैं, तो कोई कोई जैसे जो समर वेजिटेबल्स हैं, लेट्स से जिसको हम गोड्स बोलते हैं, वो यूजुअली समर के वेजिटेबल्स हैं, बट वो अभी आपको विंटर में भी मिल जाएंगे. ठीक है. बट एक्चुअली विंटर में क्या है, ज्यादा आपको रेडिस, कैरेट, नो कॉलीफ्लावर्स, वो क्योंकि ये अभी के सीजनल फ्रूट्स हैं, तो हमको लोकल लोकल फ्रूट्स वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन एक्सोटिक. एक तो ये चीज है. दूसरा, प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि ये मार्केटिंग का भी जमाना है, तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि नो व्हाई दे आर नो मार्केटिंग ये फूड. तो चेन्स तो खोलना है, तो वो तो आप नहीं रोक सकते हो. जैसे फास्ट फूड चेन्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं, दे विल बी देयर. दैट क्योंकि इट इज एन एरा ऑफ कंज्यूमरिज्म का एरा है, तो आपका फास्ट फूड चेन्स भी होंगे, रिटेल्स भी होंगे, सुपरमार्केट्स भी होंगे.
it depends on you as to what you are choosing for your health and for your family health. So the first and foremost priority should be seasonal and locally available fruits and vegetables. या whatever is available. अगर आपके रीजन में राइस ज्यादा खाते हैं, पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ राइस ज्यादा खाते हैं, यू हैव दैट. आपको बासमती आप नहीं खाते हो, आप मत खाओ बासमती. आपका जो लेट्स से इफ यू आर हैविंग गोविंद भोग, मैं नहीं पता आपका रीजन, but let's say if you are having any local rice variety, you have that. So that will have more benefits rather than if you are having any exported or imported varieties. ठीक है. We have another question by Samar. Samar, can you please unmute yourself and ask your question? Thank you, sir. Sir, can you tell, ma'am, can you tell me which benefit we are having with Ayurvedic? Which benefit? The benefits of the Ayurvedic. Ayurvedic food. What I was saying. Ma'am, of the Ayurvedic, which See, what I through my talk, what I told you that Ayurveda directs many of the principles and rules of Indian traditional foods. ठीक है. आयुर्वेदिक फूड वैसा कुछ नहीं है. जैसे आयुर्वेदा जो एक आप कह सकते हो कि मेडिसिनल ट्रीटीज है, जो आपका कंटेम्पररी कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन है इंडिया का. दैट डायरेक्ट्स, वो बताता है आपके होलिस्टिक वेलबींग के लिए कि कैसा खाना खाना चाहिए. तो आयुर्वेदिक फूड नहीं. जैसे कि आपको अगर आयुर्वेदा सीजन के हिसाब से बताता है कि जैसे गर्मी के समय में आपको ठंडा कूल ना जैसे जूसेस हैं या कुछ उस तरीके की चीजें लेनी चाहिए. उससे आपका, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, आप काफी ज्यादा स्वेट जैसे वाटर एक्सक्रीट करते हो बॉडी से, तो वो इनटेक बढ़ाने के लिए वो रेकमेंड कर रहे हैं. तो अगर आप उसको आयुर्वेदिक फूड कह रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट आयुर्वेदा एक्चुअली डायरेक्ट्स की एज पर योर बॉडी टाइप, एज पर योर seasonal requirements, how and what you should be eating actually. So Ayurveda is basically a guiding principle for most of the Indian traditional ma'am. foods. Thank you, ma'am. I guess because we're restricted with time, we'll just take one more question. Yeah. Adarsh, can you please unmute yourself and ask your question? Thank you, sir. So, ma'am, my question is that it is so much necessary to take proper diet every day, or that we can eat always green vegetables, boiled vegetables, etc. Or, ma'am, can we eat junk food sometimes? You can. No, you should try to eat as much healthy as you can. But obviously there's always a scope for क्योंकि आजकल के जमाने के बच्चे हैं, बच्चे क्या है, एडल्ट्स भी, जो भी है, तो आप once in a while you can indulge yourself. आइसक्रीम ले लिया या कुछ ले लिया, बट इट शुड नॉट बी हैबिट कि आप डेली ही कुछ जंक फूड ले रहे हो, कुछ ना कुछ और रोज ऑर्डर हो रहा है. दैट यू शुड अवॉइड एक्चुअली. सो क्योंकि आपको स्कूल जाना होता है, आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको कंसंट्रेशन चाहिए, आपको प्रॉपर स्लीप, बहुत सारी, ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना ही, बहुत सारी चीजें, आपका जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, फूड इज एन इंटीग्रल पार्ट. बट आप कब सोते हो, कितना स्क्रीन टाइम है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, ऑल दैट डिपेंड्स एक्चुअली. तो अगर आपका सब कुछ बैलेंस रहेगा, इसमें once in a while if you indulge in junk food, processed food, that is okay, but it's not always recommended. Yeah. There's still a lot of raised hands, but Yes. I think to all the students, if your question hasn't been answered, you can directly mail your question and we can answer later. Yeah. So I've shared my email address and you can share your question with me, and ma'am, I can compile all the questions and I can share them in a single mail, and you can respond whenever you're available. Sure. And get back to the students accordingly. Sure. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Thank It's a you. nice connecting and interacting with all students. It's always a pleasure. Yeah. Thank you so much, ma'am. Bye. I'm sure the students also feel the same. They must have enjoyed today's session. It was so intellectual today. Yeah, I just hope that with my talk I'm able to at least sensitize
young children about the importance of Indian traditional food or Indian food, and they would know, like, they would try to have it as often as they can. Yeah. Right. Cut down on the junk food as much as they can. Yeah. Yeah. All the students, if you want to, you can watch this recording. We'll be sharing the recording on YouTube. So you can, and in your web student login also, you can access it again and watch it. If you've missed something, you can watch it again. And if some question arises, you can come back to us. We can answer that. So feel free. Yeah. Thank you. Okay. Bye-bye. Thanks a lot. Bye. Thank you. Okay. I have an announcement for the students that I would like to remind you that the registrations for scientific excursion are open. To know more about CAMP's upcoming scientific excursions and how to participate in them, please check out the link in the chat below. Don't miss out on the opportunity to visit various prestigious labs and organizations like CSIR, ISRO, DRDO, and many others. How many of you enjoyed today's session? Lovely, lovely. Great. Seems like many of you enjoyed the session. So I would like to share with you that on 21st of December at 4 p.m., we will be having our 41st online knowledge sharing session, which is our next session on Introduction to Python by Mr. Jasvi Tyagi, who is a coding mentor. And in this workshop, you will get to understand the fundamental aspects of this programming language. So I'll share the link in the chat below, and you can register with that. And if you have any further questions or need additional support, feel free to reach out at any of our social media handles or helpline numbers. We are here to assist you on your path to success. Thank you for your active participation and dedication to your personal and professional growth. Like I said, in case if you have missed today's session or would like to watch it again, the recordings will be available under your student login. And last but not the least, we would love to hear your feedback so we can keep improving our content. Please fill out this quick workshop feedback form and let us know your thoughts. Don't worry that these answers will be kept anonymous. And we would also appreciate if you could share a small testimonial video describing how this knowledge sharing session by CAMP helped you. You can either upload the video to your social media handle and tag us, or you can share the video with us and we'll directly post it on our social media handles. Now we will end the session and we will all meet soon on 21st of December for our next session on Introduction to Python. Thank you, everyone.